Good morning, friends. Myself Kedar Badeka. Good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and we another meet for the lecture series of quality and reliability engineering. So today we are taking the 10th lectures of this subject from the chapter number 2. In the previous series of the ninth lecture series, we understand the various concept of the quality engineering, right? So previously we understand the 5S, TQMs, right? The 7 quality tools, 7 new quality development tools, Kaizens, then the quality circle. These are the different quality improvement techniques, right? And which we try to understand in the previous series of the lectures. But in today's lecture, we try to focus on one of the another concept of the total quality engineering, वन ऑफ द अनदर कंसेप्ट विच इज़ रिलेटेड टू द TQM. क्योंकि आप देख ली, मैं आपको एक बेसिक चीज़ समझाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ कि एक ये टॉपिक जो है इसका नाम है टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, राइट? आप किसी भी प्रोसेस के अंदर, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोसेस के अंदर आप जाएंगे तो उस सब के अंदर जो है वो एम्प्लॉय जो प्रोडक्शन प्रोसेसेस के साथ, जो किसी न किसी प्रोडक्ट की किसी न किसी स्टेजेस के साथ जहाँ पे उस एम्प्लॉय का एक तरीके से एक इन्वॉल्वमेंट है, तो वहाँ पे अगर जो एम्प्लॉय है वो टोटली उसका इन्वॉल्वमेंट उस प्रोसेस के अंदर नहीं बढ़ेगा, तो फिर उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को उस लेवल तक अचीव करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. सो दिस इज़ काइंड ऑफ द टीम वर्क एक्टिविटी, टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट्स. So let's start the deep discussions on the total employee involvement, which is also shortly which is known as a TEI. So what is the definitions of the total employee involvement, or how to describe the total employee involvements? So the total employee involvement is a system for a direct participations of employee to organizational सक्सेस. तो टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे जो एम्प्लॉय है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिससे कि एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक सक्सेस जो है वो सीरीज इंक्रीज हो. बाय द लेटिंग दैम द टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कहीं ना किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी पाके जो है उस ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ाते हैं. इट्स एनेबल्स everyone is deeply involved using the over brain power in problem solving, learning, continuous improvement activities, and a systematic search for the opportunities. A total employee involvement is a system for a direct participations of the employees in the organizational success by letting them take the responsibilities. तो ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे एम्प्लॉय खुद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जो है ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में पार्टिसिपेट करते हैं, जहाँ पे वो खुद अपने अपना एक डीपली जो है वो इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं विथ यूजिंग देयर ओन ब्रेन पावर्स, their problem solving abilities, their learnings, and the continuous improvement activities, and a systematic search for the opportunities. So this is all about the total employee involvement. So the TQM, यानी मैंने पहले ही आप चीज़ को ये चीज़ के साथ मैंने आपको जब डिस्कशंस हमने स्टार्ट किया तो उसका पहले ही मैंने आपको बताया था कि ये बेसिकली जो है वो TQM की ये कंसेप्ट है, वो TQM का एक सब पार्टिसिपेशन कंसेप्ट इस चीज़ को बोला जा सकता है. सो द TQM principles and strategies which is pertaining to employee involvements are the first, which is the motivations, teamwork, training and mentoring, recognitions and rewards, performance appraisals and the feedback, and the empowerments. So TQM principles जो है, राइट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जो हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर करके आपको समझाने की कोशिश की थी. सो TQM principles and a strategy, right, is pertaining to the employee involvements are, right, किस तरीके से इस TQM कंसेप्ट के अंदर एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट जो है वो हम
एक तरीके से ला सकते हैं, तो कि मोटिवेशन से, टीम वर्क से, ट्रेनिंग एंड मेंटरिंग से, रिकॉग्नाइजेशंस और रिवॉर्ड दे के, फिर परफॉर्मेंस अप्राइजल्स दे के एंड फीडबैक उनके लेके, देन दी एम्पावरमेंट, एक तरीके से उसको एम्पावर करके जो है वो हम इस तरीके से उनका इन्वॉल्वमेंट जो है वो बढ़ा सकते हैं. सो द बिहेवियरल पैटर्न्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक एम्प्लॉय जो रहता है उसका बिहेवियरल पैटर्न क्या रहता है, राइट, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, तो कि 10% ऑफ द एम्प्लॉय विच इज़ द सेल्फ एक्चुअलाइज्ड, राइट, 10% जो है वो एम्प्लॉय जो रहते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो रहते हैं वो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड होते हैं. 80%, राइट, 80% एम्प्लॉयज़ आर ए फैंस सीटर्स, राइट, 80% लोग जो है वो एक तरीके से फैन सीटर्स टाइप्स होते हैं. एंड ओनली अ 10% विच इज़ डिफ़िकल्ट टू इम्प्रूव, राइट. ऐसे 10% ही एम्प्लॉय होते हैं जिसको इम्प्रूव करना बहुत डिफ़िकल्ट है. यानी जो पहले वाले 10% थे, पहले वाले 10% थे जो कि सेल्फ एक्चुअलाइज्ड है, यानी वो तो एक तरीके से उनका इन्वॉल्वमेंट तो ऑर्गेनाइजेशंस में ऑलरेडी अच्छा खासा है ही. 80% जो है, जो फैन सीटर्स है, जो एक तरीके से फॉलो करने वाले लोग हैं, उसको जो है वो आप जो हमने पहले जो स्ट्रेटजी बताई, जैसे मोटिवेशंस हो गया, मेंटरिंग्स हो गया, अप्राइजल्स हो गया, रिवॉर्ड्स हो गए, ऐसे उन फैन सीटर्स को हम लोग जो है वो उस पैटर्न को जो है उसका जो बिहेवियरल पैटर्न है एम्प्लॉय का उसको चेंज कर सकते हैं. सिर्फ 10% लोग ऐसे हो सकते हैं जिसको इम्प्रूव करना जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है. तो ये एक बेसिक इसका बिहेवियरल पैटर्न हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें सारे एम्प्लॉयज़ का एक तरीके से इन्वॉल्वमेंट किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर चाहिए, तो आपको उस बिहेवियरल पैटर्न को, हर एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का बिहेवियरल पैटर्न को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. तो फर्स्ट विच इज़ द मोटिवेशंस इज़ एन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस and influences that drive an individual to achieve the certain goal. तो मोटिवेशन के क्या क्या कुछ हो सकता है. मोटिवेशन से ये एक इंटरनली या फिर एक्सटर्नल एक तरीके से हम लोग फोर्स उस एम्प्लॉय के ऊपर जो है वो डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि वो जिससे वो एक उसके अंदर एक इन्फ्लुएंस डेवलप्ड हो और वो अब खुद को इस इंडिविजुअल को जो है वो अपने गोल को अचीव करने के लिए जो है वो थोड़ा मोटिवेट होता रहे. That is the motivations. Then the motivation theories of the individual employees. There is the theory X, which is the Stibugets friend. This theory assumes that the employee cannot be trusted and they have to be survived all times. The theory X is categorized the employees as follow, which is avoid the work, no ambitions, no initiatives, do not टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड नीड्स द सिक्योरिटीज़. ये एक तरीके से ऐसे माइंडसेट वाले जो है एम्प्लॉय है जिसके ऊपर ये थ्योरी जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रिप नहीं कर पाती. वो लोग कैसे होते हैं, उनका जो माइंडसेट रहता है कैसा रहता है, तो कि जो ज़्यादातर जो है वो काम को अवॉइड करना चाहते हैं, जिसके अंदर कोई एम्बिशंस नहीं है, राइट, कोई इनिशिएटिव लेने की कोई भावना नहीं है. दे डू नॉट टेक एनी काइंड ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो खुद अपने ऊपर जो है किसी न किसी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते. देन दे नीड द सिक्योरिटीज़. सिर्फ उनको सिक्योरिटीज़ चाहिए कि मुझे इस कंपनी से निकाल आना जाए. तो ऐसे इंडिविजुअल्स के ऊपर जो है इस टाइप की थ्योरी जो है वो अप्लाई करना, थ्योरी एक्स, दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग. तो थ्योरी वाई, दैट इज़ द डगलस McGraw theories. According to this theory, the employee is seek the freedoms. इसके अंदर इस थियरी के मुताबिक एम्प्लॉय जो है वो फ्रीडम चाहता है. They do not difficult to do difficult and challenging the jobs, right? इसके अंदर जो है इस तरीके के काम के अंदर थियरी वाई के मुताबिक जो है जो एम्प्लॉय जो है वो कोशिश करता है कि उसको जो टास्क दिया गया है उसके अंदर उसको
पूरा जो है वो फ्रीडम दिया जाए ताकि वो डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग जॉब को कर सकें और बाय देमसेल्फ, वो खुद से कर सकें। द थियरी वाइब इज विच इज़ कैरेक्टराइज्ड एज एन एम्प्लॉय एज ए वॉन्ट्स टू लर्न, वो कुछ सीखना चाहते हैं। वर्क इज़ ए न्यूट्रल एक्टिविटी, वर्क एज ए न्यूट्रल एक्टिविटीज़ have a self-disciplined employee, have developed their self-employees and have a self-confidence। इस तरीके की थियरी इस मोटिवेशंस के इस वाले एम्प्लॉय के ऊपर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट विच इज़ द टीम वर्क। व्हाट इज़ द टीम वर्क? तो टीम वर्क बेसिकली है क्या? तो टीम वर्क ऐसी चीज़ है जो सब मिल के एक टास्क को जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। सो टीम वर्क इज़ ए टूगेदर वन इच अचीव्स द मोर। एक साथ मिलके हम बहुत सारा कुछ जो है एक साथ काम करके हम बहुत सारे गोल्स को जो है वो अचीव कर सकते हैं। टीम वर्क इज़ नॉट ए नेचुरल ह्यूमन फंक्शंस, राइट। टीम वर्क जो है वो एक तरीके से कोई नेचुरल ह्यूमन फंक्शंस नहीं है। मैनेजमेंट रोल इन एनेबलिंग द टीम वर्क, यहाँ पे मैनेजमेंट का रोल जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है कि किस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर किस तरीके से एक टीम वर्क वाला जो एटमॉस्फेयर है वो कैसे डेवलप्ड करें। एंड यूज़ ऑफ द क्वालिटी सर्कल। अब क्वालिटी सर्कल मुझे यहाँ पे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वालिटी सर्कल जो है वो एक तरीके से ऐसा ही कंसेप्ट है जिसके अंदर यहाँ पे आपका जो है वो टीम वर्क किया जाता है, राइट। जहाँ पे अलग अलग एक इंडस्ट्रीज़ के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट से हर एक वॉलंटियर लोग जो है वो आते हैं और खुद को जो है वो एक साथ मिलके कुछ कोशिश करते हैं कि कुछ हर एक डिपार्टमेंट के प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट विच इज़ द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। नेसेसिटी फॉर orientations and training, necessity for the orientations and the training, a training which is enables employees in understanding. So the first which is the objectives of the organizations, his role, his responsibilities, his authorities, familiarities in the understanding the nature of the jobs, experience and recruits the need which is more orientations, and training is not a one टाइम एक्टिविटी। ट्रेनिंग जो है वो और ट्रेनिंग के साथ ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के किस तरीके से हम लोग पूरा इन्वॉल्वमेंट एम्प्लॉय का जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं। तो कि ये एक नेसेसिटी ऑफ द ओरिएंटेशंस ट्रेनिंग है। द ट्रेनिंग विच इज़ एनेबल्स एम्प्लॉयज़ इन अंडरस्टैंडिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से एम्प्लॉय जो है वो समझ सकता है कि ऑर्गेनाइजेशंस के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, हिज रोल, उसका खुद का इस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या रोल है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उस वो रोल को उस गोल को अचीव करने के लिए, हिज अथॉरिटीज़, उसके पास क्या अथॉरिटीज़ हैं, फैमिलियरिटीज़ इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द जॉब, वो किस तरीके से उस जॉब का नेचर जो है वो समझ पा रहा है। Then the experienced recruits the need more orientations and training is not a one time activity। ये एक ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो सिर्फ एक बार में ख़त्म की जा सकती है। सो ये यहाँ तक का जो कंसेप्ट था वो टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें आती है कि किस तरीके से हम लोग एक एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट जो है वो किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है वो हम लोग एक तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये एक तरीके से किसी ना किसी तरीके से हम लोग जैसे बोल सकते हैं कि मोटिवेशन से हो सकता है, ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉय से हो सकता है, किसी रिवॉर्ड्स देके हो सकता है, किसी का अप्राइजल से हो सकता है। तो ये डिफरेंट जो है वो मेथड्स है, पर ये पूरा जो कंसेप्ट है वो एक तरीके से TQM के साथ एक पूरी टोटली एक कनेक्टेड लिंक है। और इस कंसेप्ट के थ्रू जो है वो हम बहुत सारी चीज़ें अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने क्वालिटी ऑफ दी मैन्युफैक्चरिंग इम्प्रूव कर सकते, क्वालिटी ऑफ द प्रोसेस इम्प्रूव कर सकते। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट के थ्रू जो है वो हम
अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक तरीके से टोटली चेंज कर सकते हैं। तो आई थिंक सारे स्टूडेंट जो है वो इस कंसेप्ट के साथ एक तरीके से अवेयर हो चुके होंगे। तो एक तरीके से मैंने आपको ये सारा कंसेप्ट जो है वो समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को इस कंसेप्ट के अंदर किसी भी तरीके की डिफ़िकल्टीज़ है, कोई प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी चीज़ अगर समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस के अंदर आपके क्वेश्चंस जो है वो मुझे पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर क्वेरीज एंड क्वेश्चंस इनटू द नेक्स्ट सीरीज़ ऑफ द लेक्चर्स। आप अपने क्वेश्चंस जो है मुझे पर्सनली भी व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हैं। आपकी डिफ़िकल्टीज़ मैं डेफिनेटली सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर्स।